Hello and welcome to our channel. In this video, we'll be covering class 7th, chapter 1, environment of geography. In this video, we'll be covering all the details related to the environment, that is, what is environment, components of the environment. So let's start our video. But before starting with the video, please like the video, subscribe to our channel, and hope you like the video. Ma'am, mountains, Ma'am, solar system, mountains, ma'am, rivers, ma'am, oceans, ma'am, rivers, animals, animals, plants, animals, human ठीक beings, है clouds, shrubs, ma'am, rain, human बेटा beings. प्लांट्स एनिमल सब ह्यूमन बींग्स सब होंगे क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे. ठीक है. yes, अब ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स में देखो बिल्डिंग, पार्क, ब्रिजेस, रोड, इंडस्ट्रीज दिए हैं. इसके अलावा अपने घर में से देख के बताओ व्हाट कंपोनेंट्स आर देयर इन योर हाउस. ma'am, chair, Ma'am, chair, gate, window, bag, chair, ma'am, dining, chair, चेयर, टेबल, सोफा, ma'am, flowers, चेयर, bed, टीवी, पिलो, बेडशीट. mirrors, Every component that you are having in a house is a human made component. ठीक है. Most of the components that you have in your house are human made. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक कौन से होते हैं? जो कंप्राइज करते हैं लिविंग थिंग्स. एबायोटिक कौन से होते हैं? दैट कंप्राइज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. मम्मी चाय छान लो. बेटा म्यूट योर माइक. अगर ये घर की बातें करनी होती है ना देन म्यूट योर माइक एंड देन स्पीक. नेक्स्ट वी हैव अ नेक्स्ट टॉपिक नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट में हमने पढ़ा लिथोस्फेयर, देन हमने पढ़ा हाइड्रोस्फेयर, देन पढ़ा एटमॉस्फेयर एंड देन हमने पढ़ा बायोस्फीयर. उसके बाद हमने इकोसिस्टम पढ़ा. इकोसिस्टम में क्या आते हैं? हमारे सारे लिविंग बीइंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम्स इन इकोसिस्टम. आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट. ठीक है. ह्यूमन बीइंग कैसे एनवायरनमेंट का पार्ट है, हाउ ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट टू मेक अप ह्यूमन एनवायरनमेंट. This we will study in human environment. So let's read the paragraph. ma'am, may I read Modify the it according to their need. Early humans adapted themselves to the natural surroundings. They lead a simple life and fulfilled their requirement from the nature around them. With time, needs grew and become more varied. Humans learn new way to use the and change environment. They learn to grow crops, domesticate animals and lead a settled life. The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started and Commerce developed. commerce developed, industrial revolutions and enabled large scale production. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस नहीं है. रेवोल्यूशन के आगे एस थोड़ी लगा है जो हम रेवोल्यूशंस बोलेंगे. इट्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. Revolution enable large scale production, transportation, production, दोबारा बोलो transportation, इस लाइन को. production enable large scale production, transportation become faster. Information revolution made communication easier and speedy across the world. Now stop. Roll number 2 will read the second para. Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanut in winter? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. Humans must learn to live and use their environment in harmonious way. Now stop. अब हम पहले इसका मतलब समझेंगे. ठीक है. फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ का वी आर लर्निंग ह्यूमन एनवायरनमेंट. ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है?
First paragraph says human being interact with the environment and modify it according to their need. Human being क्या करते हैं, environment से मिलते हैं, ठीक है, और environment को modify करते हैं, मतलब change करते हैं according to their need, जैसे कि उनको चाहिए होता है वैसे वो उसमें change कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें घर बनाने हैं, हमने क्या किया, environment के साथ forest कट कर दिए, अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमने environment को modify कर दिया. मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही. बेटा ये कनेक्शन माइट बी लॉस्ट या फिर आपका कनेक्शन वीक होगा, दैट्स व्हाई माय वॉइस विल बी ब्रेकिंग विद यू. Now next line says early humans adapted themselves to the natural surroundings. Early humans means पहले human beings ने क्या किया था, अपने आप को अपने surroundings के साथ साथ natural surroundings के हिसाब से develop कर लिया था, adapt कर लिया था उसको. They led to adapt करना मतलब किसी चीज़ को धारण कर लेना. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. और पहले ह्यूमन बींग्स कैसे रहते थे, अगर हम बहुत अर्ली एज देखें तो ह्यूमन बींग्स कैसे रहते थे, वो सादे कपड़े पहनते थे, खाना खाते थे तो द फायर पे वो कुक कर लेते थे, ठीक है. वी हैव स्टडीड दैट इन हिस्ट्री एज वेल ना, कि हाउ ह्यूमन बींग्स हैव लिव्ड इन द अर्ली एजेस. तो वहीं से देखो रिलेट करके चलो कि दे लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ, बहुत सिंपल सी लाइफ जीते थे. जैसे हम अब बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, हाउसेज ऑफ ब्रिक्स में रह रहे हैं, बट इन अर्ली एजेस पीपल वर नॉट लिविंग इन द ब्रिक हाउसेज, वो हट्स बनाते थे और उसी में रहते थे. सो दे लीड अ वेरी सिंपल लाइफ जिससे उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाए. विद टाइम नीड्स ग्रू, और टाइम के साथ साथ क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स की ज़रूरतें बढ़ती गई एंड बिकेम मोर वैरिड, और उनकी ज़रूरतें बढ़ती गई और एक दूसरे से अलग होती गई. ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट. ह्यूमन बींग्स ने क्या सीख लिया कि हम और इन्वायरमेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं और उसमें अपने अकॉर्डिंग कैसे कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने क्या सीखा, क्रॉप्स कैसे ग्रो कर सकते हैं हम. डोमेस्टिकेट एनिमल्स, एनिमल्स से हम क्या क्या डोमेस्टिक यानी कि घर का काम ले सकते हैं. एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ, और एक अच्छी वेल सेटल्ड लाइफ कैसे, आराम वाली जिंदगी कैसे जी सकते हैं, ठीक. नेक्स्ट पैराग्राफ से नेक्स्ट लाइन सेज द व्हील वॉज इन्वेंटेड. हमने क्या इन्वेंट किया, व्हील. व्हील तो पता है ना सबको, पहिया. सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, हमने सरप्लस मतलब बहुत सारा फूड प्रोड्यूस किया. बार्टर सिस्टम वो एमर्ज, बार्टर सिस्टम एमर्ज हुआ, एमर्ज मतलब इन फंक्शन में आया. बार्टर सिस्टम मैंने बताया कौन सा सिस्टम होता है, अभी रिवीजन में भी कराया था, कि वो सिस्टम जिसमें हम कमोडिटीज़ को, गुड्स को एक्सचेंज करते हैं विदाउट यूजिंग एनी मनी. गुड्स के बदले हमने गुड्स ले लिए, राइस के बदले वीट ले लिए, दैट इज बार्टर सिस्टम. तो बार्टर सिस्टम आया, ट्रेड स्टार्टेड, ट्रेड स्टार्ट हुआ, हमने एक गुड्स को सेल करना शुरू किया मार्केट में. कॉमर्स डेवलप, कॉमर्स मतलब मार्केट्स डेवलप हो गई. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एनलार्ज लार्ज स्केल प्रोडक्शन, फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज भी सेटअप हुई जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन था यानी कि जो क्रॉप्स वगैरह हम ग्रो कर रहे थे वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग गए. पहले हम स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते थे, थोड़ा सा प्रोड्यूस करते थे, इंडस्ट्रीज के आने से वो और ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग गया. नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, और फिर ट्रांसपोर्टेशन आए, ट्रांसपोर्ट्स आए. व्हील का इन्वेंशन हुआ, बुलक कार्ट्स आए, बुलक कार्ट्स के बाद हमने और मोटर वाले व्हीकल्स इन्वेंट कर दिए, तो ट्रांसपोर्टेशन भी फास्टर हो गया. इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर, और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होने लगा आपस में, ह्यूमन बींग्स के आपस में, और जिससे क्या हुआ, कम्युनिकेशन यानी कि जो हम एक दूसरे को बात कम्युनिकेट करते हैं, बोलते हैं, वो और फास्टर हो गया और स्पीडी हो गया. जैसे सोचो पहले टेलीफोन्स थे, आज मोबाइल फोन्स हो गए. बाय यूजिंग टेलीफोन्स, मोबाइल्स फोन, इंटरनेट, वी कैन कम्युनिकेट आवर थॉट्स टू वन पर्सन टू द अदर, ठीक है. Next paragraph says, have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुमको समर टाइम में जूसी वाटरमेलन क्यों अच्छा लगता है, एंड इन द सेम टाइम व्हेन देयर इज अ विंटर तो हॉट रोस्टेड पीनट्स क्यों अच्छे लगते हैं? अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. एक परफेक्ट बैलेंस ज़रूरी है किसके बीच में, नेचर और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में. एज ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज द एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे,
क्योंकि ये भी ज़रूरी है, इन्वायरमेंट में रहते रहते ये भी ज़रूरी है कि ह्यूमंस को सीखना पड़ेगा कि वो कैसे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करें, ठीक है। दैट्स वाई हमको समर में हम वाटरमेलन खाते हैं क्योंकि गर्मी में वो फ्रूट आता है, ठीक है। दो चीज़ें होती है, एक तो हमें गर्मी लगती है, वी वांट जूसी फ्रूट्स, एज वेल एज हमको गर्मियों में जो प्रोडक्शन है वाटरमेलन की वो होती है, वो सर्दियों में नहीं होता। लाइकवाइज रोस्टेड पीनट्स हमें विंटर में अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, रोल नंबर 3। Nuri, a girl from Mizoram from Ravi class, often talks about the lush green surroundings of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home state during the coming vacation. Ravi's teacher asked the student to draw the landscape, houses, and activities of the people and places they visit during the holidays. ओके, नाउ स्टॉप। अब लास्ट पैराग्राफ क्या कहते हैं, नूरी अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम, न्यूरी जो कि एक लड़की थी, कहाँ से, मिजोरम से, फ्रॉम रवीज क्लास, कहाँ, कौन सी, रवि की क्लास से, ऑफ्टन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग्स, हमेशा किसके बारे में बात करती है, लश ग्रीन सराउंडिंग्स के बारे में बात करती है। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, जब उसने ये देखा कि रवि बहुत अपसेट है, क्यों, क्योंकि उसका प्लेग्राउंड खो गया। नूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन, नूरी ने क्या किया, उसको इनवाइट किया कि वो उसके होम स्टेट में आए, यानी कि उस पर्टिकुलर स्टेट में आए जिसमें उसका घर है, जो आने वाली वेकेशंस हैं उसमें। रवि टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रॉ लैंडस्केप, हाउस एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल एंड प्लेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज, और रवि की टीचर ने उन्हें क्या बोला कि वो ड्रॉ करे उन लैंडस्केप को जहाँ पे वो छुट्टियों में गए थे, ठीक है। दिस सम्स अप आवर चैप्टर। और रवि की टीचर ने जब उसको ये बोला कि वो लैंडस्केप ड्रॉ करो, तो उन्होंने क्या बोला उनको कि क्या ड्रॉ करो, उस पर्टिकुलर लैंडस्केप में क्या आ जाएगा, हमारा इकोसिस्टम, है ना। इकोसिस्टम में क्या आएगा, अगर मान लो आप लैंडस्केप ड्रॉ कर रहे हो, यू आर ड्रॉइंग माउंटेन्स, यू आर ड्रॉइंग रिवर्स, तो उसमें क्या आ रहा है, हमारा पूरा इकोसिस्टम। ओके, दिस सम्स अप आवर चैप्टर। ये हमारा चैप्टर खत्म कर देता है।